आर्टिकल 370 के इस लीगल शोडाउन में रोज एक ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर खड़ा हो रहा है जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और उनका बेंच काफी डिटेल में सोच विचार कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, द केस इज नॉट द यूजुअल केस. Its decision will change the future course of the Jammu and Kashmir. So, this striking courtroom showdown that pitted the corridors of power against the threads of constitutional interpretation began on 28th of August 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्लीज पर नोटिस इशू किया despite resistance from the central government, which argued that Article 370 had international and cross-border implications. अगस्त के शुरू होते ही आर्टिकल 370 के इस मुद्दे में सीनियर एडवोकेट्स ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके बारे में जजेस ने भी शायद ही सोचा होगा, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जिन पे बेंच साफ साफ डिसएग्री कर रहा है। ऐसा ही एक आर्ग्यूमेंट जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो बेंच ने उसे एग्री नहीं किया। एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट पर बेंच ने अपने ओपिनियन रखे और रीजंस देते हुए उनके आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया। हियरिंग के दौरान एक आर्ग्यूमेंट पर रिस्पॉन्ड करते हुए कि जम्मू एंड कश्मीर कुड नॉट हैव बीन रिड्यूस्ड टू 2 यूनियन टेरिटरीज ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, nor could Article 370 be abrogated since such a power was available only with the J&K Legislative Assembly. Chief Justice of India DY Chandrachud ने कहा, such a broad proposition with regard to Articles 3 and 4 may not be correct in terms of language used in Article 356 1C. Suppose there are disputes between two states which are impossible to resolve, and then the center steps in with regard to boundaries or something. So, if you are making a broad proposition like that, it is very difficult to accept. दरअसल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बैच ऑफ पिटीशंस को इस केस में रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर काउंसिल राजीव धवन ने आर्ग्यू किया that it was beyond the power of the president to suspend the requirement of obtaining the views of a state before rectifying the reorganization of the erstwhile state. धवन ने आर्टिकल 3 को रेफर किया which mandates the president to consult the state legislature before reorganizing. Article 4 clarifies that any law framed under Article 3 is not considered a constitutional amendment. Council के according president non-law making powers such as providing views और consent को assume नहीं कर सकते। उनका आर्ग्यूमेंट था कि किसी स्टेट के कैरेक्टर में परमानेंट चेंजेस करने की पावर आर्टिकल 356 के तहत प्रोक्लेमेशन के दौरान नहीं सौंपी जा सकती, विच इज बाय नेचर टेम्परेरी एंड एमरजेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की इशुएंस को इन्वॉल्व करता है उन केसेस में जहां पर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। आर्टिकल 356 1C specifies that the president can make provisions necessary for implementing the proclamation's objectives, including suspending parts of the constitution relating to state bodies or authorities. इसी आर्टिकल पर आर्ग्यूमेंट देते हुए धवन said, the objective of Article 356 is to maintain the form of constitution and protect the constitutional machinery in the state. Under the grab of protecting the constitutional machinery in the state, Parliament cannot eliminate the state itself and derogate a federal unit. उनके इस आर्ग्यूमेंट के बाद बेंच ने उनसे पूछा, क्या ऐसी कोई लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइडेंटिफाई की जा सकती है which actually empowers the president to declare that the state legislature's powers can be exercised by the parliament, besides suspending any provision of the constitution to effectuate the proclamation. बेंच ने नोट किया कि आर्टिकल 356 स्पेसिफाई करता है कि प्रेसिडेंट हाईकोर्ट की पावर्स को एज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा ऐसी और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लिस्टेड नहीं है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर। बेंच ने ये भी नोट किया, यदि कॉन्स्टिट्यूशन का इरादा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को निलंबित करने के अधिकार से किसी स्पेसिफिक पावर को बाहर करने का था तो उसने स्पष्ट रूप से ऐसा किया। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि प्रेसिडेंट की पावर पर अतिरिक्त बाधाओं के लिए बहस करना चुनौतीपूर्ण है। बेंच आस्क्ड धवन, द प्रोवाइजो सीम्स टू इंडिकेट दैट इफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू एक्सक्लूड अ पावर फ्रॉम द अथॉरिटी टू सस्पेंड अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that has been specifically defined, so where it wanted to restrain it did so.
How do we now say that there will be other restraints on his power? Day 6 को हुए इस केस के आर्ग्यूमेंट्स में सीनियर काउंसिल राजीव धवन ने अपने सबमिशंस कंक्लूड किए हैं. He prayed to reinstate Jammu and Kashmir statehood and called for a new assembly election. लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रिस्पॉन्डेड that the contention was too broad and wide to gain acceptance. सिर्फ D.Y. चंद्रचूड़ ही नहीं, जस्टिसेस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, B.R. गवई एंड सूर्यकांत ने भी ये माना कि ऐसे कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं जिन्हें प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया जा सकता. इसलिए लिमिटिंग द प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी टू ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज माइट नॉट होल्ड एज अ वैलिड लीगल आर्ग्यूमेंट. In simple words, the Supreme Court stated on Wednesday that the Constitution does not prohibit the President from reorganizing a state. आपने देखा होगा कि कुछ पिटिशनर्स आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के लिए कंसेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नीड को हाईलाइट कर रहे हैं. कुछ ने वैलिडिटी ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल ड्यूरिंग द एब्रोगेशन को क्वेश्चन किया है. Some pleas referred back to the instrument of accession, and others cited the 2018 Supreme Court ruling that regarded Article 370 as having permanent status. Many petitions contested the Jammu and Kashmir State Reorganization Act, which divided the state into 2 union territories starting from October 30, 2019. लेकिन इन सब contentions और submissions का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही करेगा. Till then, keep following Law Chakra for updates on Article 370.